यहाँ जितने भी आवारा कुत्ते रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उनकी देख रेख की जाती है। एक भाई हैं, वो बड़ा अच्छे शेल्टर चलाते हैं और लगभग ये 50 से ज़्यादा संख्या कुत्तों की है और हर एक का ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि दवाइयों का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा। और ये अकेला बंदा है और मैं इनका नंबर आपको दे दूँगा बात करके इनसे। अगर हो सके तो आप इनका सपोर्ट करो, क्योंकि स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, जिनको हम मार के तोड़ के भगा देते, कई बार हमारे लोग होते हैं जो मार के भगाए जाते हैं, तो उन सब की रखवाली, उन सब की देखभाल, उन सब की जिम्मेदारी एक तरह से भाई अकेले निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अगर कुछ लोग इनको सपोर्ट कर सकें तो करें। जो भी आपका इच्छा हो, स्वेच्छा हो, उससे आप 100, 200, 500, 1000 जो भी दे सको, या रहने खाने की जगह का इन्होंने ये जगह रेंट पे ली हुई है। ये पटला के पास में है, एलडी को सामने देख रहे हैं आप, एलडी को सिर्फ पुख्ता नीचे आता है। और दूसरा 116 में इन्होंने एक ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ 4-5 इनके पास स्टाफ भी हैं, इन सब का खर्चा भी है, किराया भी है। तो जो लोग दान करने की क्षमता रखते हैं वो ज़रूर करें इन लोगों को, क्योंकि ये परोपकार का काम है। हम दुनिया भर में जाते हैं, पूजा पाठ, मंदिर वगैरह सब जगह जाते हैं, मगर ये भी एक परोपकार का ही काम है। अगर इनकी सपोर्ट कर सकते हैं तो करें। सही है भाई, भाई 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 खूब है भाई। ये तो दिखाते हैं आपको क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और एक छोटा सा इंटरव्यू कवर करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। हेलो 1 2 3 माइक चेक। थोड़ा सा लाउडली बोलो एक बार। Hi, I am Sachin Mishra from IIM. Here, sir, from stay. So today we are doing a small interview with the small some street vendor dogs, which are sir only. So let's start. So first question is, what was your vision to start this animal shelter? So मेरा जो विजन था वो ये था हमेशा से that these animals are voiceless souls. They have no one around there. So my intuitions was that somebody has to stood up for these voiceless souls. So we started this organization to support these animals. So this was my vision, that somebody should be there to help them, somebody should be there to support them. Okay. So any animal which inspired you to start this? No, as such there is no specific inspiration behind that. I always considered that my grandmother always insisted me to do something good for these voiceless souls, because according to her these voiceless souls are बिना झोली का फकीर। हमेशा मुझे यही कहती थी कि इनके लिए कोई भी नहीं है, तो you should always do something good for these voiceless souls. So that was the inspiration, I would say, and that was the motivation behind it. Okay. No. So can you also tell your journey from start to? So we started in 2019, and in 2019 we started with feeding very small group of a dog, where we were feeding around 30 to 35 dogs initially. So as we are talking in 2025, so we are feeding around more than 3,000 plus stray dogs with the help of our community kitchen. We are also running a small shelter home where we are treating stray dogs. We are rescuing street dogs from different corners of the city. We are bringing them here to give the medical attention, whatever they need, and once they heal, we send them back to their respective territories. Okay. So sir, a follow-up question that as you run shelter and you feed 3,000 plus animals, so how do people react around these? So there are two types of people in this world, who actually love animals, who actually hate animals. So mixed kind of response रहता है हमेशा से। हम कोशिश ये करते हैं कि we do our work, there should not be any problem to anybody. We feed in silent hours, we feed in isolation areas, we feed away from the residential areas. We also respect the opinions of others. For an example, if somebody is saying don't feed there, feed 2 feet आगे जाके खिला दो,
So we don't get into the altercation or some kind of verbal fight with anybody. We always respect the opinion. We do it as per they want. So sir, I want also one question, which is like the people who say I am animal lover, but they are not that much. Like just they say animal lover, or they upload on their social media that we are I am animal lover, animal lover. So इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं. आप कुछ कर नहीं सकते. 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट ओपिनियन. You cannot change anybody's opinion and mindset. But what you can do your bit. Whatever you want to do good for the society, do good for the animals. I'm not saying कि आपको पसंद तो आप सभी जाके करो. ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं करना है तो आप कुछ बुरा भी मत करो किसी के साथ. So my simple point is, I am not a social reformer kind of a person. और मैं कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ कि मेरी लोग बात सुनेंगे. बट माई पॉइंट इज कि ये सब बेजुबान दुख, दर्द, पीड़ा किसी को बता सकते हैं. इनके लिए कोई है नहीं सुनने वाला. अब किसी को चोट भी लगी हुई है तो वो खुद ये भी नहीं बता सकता जाके कि मुझे चोट लगी हुई है, दवाई चाहिए. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पेन. These all dogs are voiceless. Not dogs, every animal who is living on this planet, they are voiceless. So human, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन्स इस दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति है. ये साइंस में भी लिखा हुआ है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है. तो अगर हम सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं तो उस बुद्धिमानी का परिचय दें और इन जानवरों की तरफ करुणा वाला व्यवहार करें. दैट्स माई मैसेज. एंड मैं ऐसा भी नहीं कि मैं अपना मैसेज किसी पे इम्पोज कर सकता हूँ या किसी को ज़बरदस्ती मनवा सकता हूँ. मैं अपना कर रहा हूँ. वॉट एवर आई फील लाइक इज़ ओके, और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम करें. very well said, sir. Sir, I also want to ask, there are myth about abandoned or stray dogs, or for any sort of animal. Like how we have a myth for International Women's Day, for Valentine's Day. As what are your views, or what are My views are very simple about that. These are integral part of our society. ऐसा तो है नहीं कि डॉग्स 2 साल पहले कहीं से आए हैं. डॉग्स तो यहाँ पे 5000 साल से साथ रह रहे हैं. सभी जानवर रह रहे हैं. अगर हम बहुत डीप हिस्ट्री में जाएंगे तो डॉग इज़ द फर्स्ट एनिमल जिसको इंसानों ने डोमेस्टिकेट किया था अपनी हेल्प के लिए. राइट. तो तब से वो हमारे साथ हैं, जनरेशन से हमारे साथ हैं. तो इनको ऐसा नहीं है कि वैनिश तो नहीं किया जा सकता, मार के भगाया तो जा नहीं सकता, और ये कहीं से अचानक तो आके प्रकट नहीं हो गए हमारे पास. तो बट हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? स्टेरिलाइजेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जिससे उनको सुविधाएँ मिलें. वैक्सीनेशन करा सकते हैं जिससे उनको अंदर होने वाला इन्फेक्शन और उनके द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन कम हो सके. सो मिथ्स हैं. लोग सोचते हैं कि यार जानवर सोसाइटी में नहीं रहनी चाहिए, जानवर बहुत हार्मफुल हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मैं लास्ट ऑलमोस्ट 10 सालों से काम कर रहा हूँ. मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि जानवरों से किसी तरह का कोई खतरा है. Sir, I also want to ask that there are dogs, there are horses. So we have seen in past history that horses are the integral part of any of the army, any of the Indian army. So what are your views in that? That some people say that dogs are very humans are not, but dogs are more friendly, humans not that much. Horses. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हॉर्सेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट इफ यू टॉक अबाउट डॉग्स, डॉग्स आर दी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल कंपेनियन. फर्स्ट, दे ऑलवेज हेल्प इन रेस्क्यू मिशंस. दे आर पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी. देयर इज अ canine units across the world, across the globe. They are the first kind of responder in any kind of natural calamity or natural kind of disasters. कहीं पे कोई बॉम्ब थ्रेट होती है तो उससे पहले कौन जाता है? डॉग, स्नीफर डॉग जाता है जस्ट टू स्मेल दैट. कोई भी हाई प्रोफाइल क्राइम होता है तो कौन जाता है? सबसे पहले स्नाइपर डॉग जाता है. सो हॉर्सेस का तो जो मुझे नहीं पता, तो आई डोंट कमेंट एनीथिंग. बट एवरी एनिमल हैज देयर ओन सिग्निफिकेंस. सेम डॉग. मैं बना रहा हूँ, तुम उनको धमका. गाड़ी आ रही है ना, गाड़ी की वजह से चल रहा है. What are your views on Supreme Court verdict which came recently? Like first they gave a verdict which actually got misinterpreted by the media houses and or other so-called influencers or the most educated people. And then these people clear all their myth and other points,
and then Supreme Court also review all the whatever they said, and then they come up with new directions. So what are your views on it? So my simple opinion is that dogs की population control होनी चाहिए. I am okay with that and I am in sync with that view. Population control is one of the most important aspects. You cannot round up dogs and put into a shelter because shelters are not for handy dogs. Shelters are for the medical assistance purpose where somebody is undergoing treatment and treatment के बाद वो वापस निकल जाता है अपनी टेरिटरी में, like hospitals. अब आप हॉस्पिटल में किसी हेल्दी इंसान को अगर रख दोगे तो वैसे ही बीमार हो जाएगा, राइट? हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, नॉट दी किसी को भी ले जाके वहाँ पे आप रख सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर इनिशियली आया था उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया उस डिसीजन को एंड उस डिसीजन में जो भी बातें आई हैं निकल के उसमें उनका पहला यही है कि स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए और MCD या जितने भी लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं और दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स स्टेरिलाइजेशन. तो आई एम हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ डिसीजन. स्टेरिलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अगर वो नहीं होगा पॉपुलेशन अगर बढ़ती रहेगी तो फिर उतने रिसोर्सेज भी नहीं है टू फीड देम, टू फीड देम, टू वैक्सीनेट देम. अगर पॉपुलेशन मल्टीफोल्ड में इसी तरह से एक्सपेंड हो जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द पॉपुलेशन इन चेक. लेकिन अगर किसी को उठा के सिंपल उठा के बांध दो किसी जगह पे तो दैट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट आइडिया. So what are your visions for this shelter for next 6 So my vision is that we should be having I would say proper medical facility so that अभी क्या करते हैं हम लोग अभी लोकल वेट्स के पास जाते हैं हम फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस. वी हैव ओन वेटरनरी फैसिलिटी. तो आने वाले 5-6 साल में ये चाहते हैं हमारे पास एक अपना मेडिकल सेंटर हो, वेटरनरी फैसिलिटीज़ हो, जिन फैसिलिटीज़ में इन डॉग्स का हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएँ. हम अपना एक स्टेरिलाइजेशन सेंटर भी स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई डॉग वहाँ से रेस्क्यू होके आ रहा है वो ठीक हो, ठीक होने के साथ साथ उसका हम स्टेरिलाइजेशन करके ही उसको सो दैट पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहे और हमारे पास भी ऐसा इंफ्रा होगा कि हम और भी अधिक जानवरों की Thank you so much for this session. But last but not the least, I also want to say what are your last message for the society or for the so-called influencers? सिंपल मैसेज है मेरा कि देखो आप लोगों की सेम वॉइसेस हैं, आप लोग बहुत बड़ा ऑडियंसेस हैं आपका, तो आप ऐसे मैसेजेस स्प्रेड करो जिससे कंपैशन, कोएग्जिस्टेंस, इस तरह की चीज़ें बाहर आएँ और लोग थोड़ा मोटिवेट हों उन चीज़ों को करने के लिए. हेट तो ऑलरेडी इस दुनिया में हेट की कमी, तो हेट तो ऑलरेडी बहुत है, चाहे वो जानवरों के लिए है चाहे वो इंसान के लिए है. तो अगर किसी की सोशल मीडिया पे अच्छी वॉइस है, अच्छी ऑडियंस है, बहुत एक वाइड रेंज है उनका, तो दे शुड स्पीक अबाउट कंपैशन. Thank you so much, sir. ना खाने के टाइम पे तो हो नहीं पाएगा. क्या मैसेज है? एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए अगर हम अपने टाइम निकाल के किसी हमारे पास कोई शेल्टर में जाके उनका थोड़ा ध्यान रख पाएँ या फिर कुछ कर पाएँ उनके लिए, क्योंकि 1 दिन और 1 घंटे के लिए अगर हम आया फिर प्रॉब्लम है ना कि कोई किसी का घाव हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है. चलो 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 तुम चलो चलो. यहीं आके लग गया अपने.
हो गया चलो इधर अंदर चलो बहुत हो गया चलो 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 कालू अंदर जाओ